Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to tell you about schemas in PySpark. I will tell you about the possible interview questions in that as well. Okay, so just stick with me. I'll just tell you everything within a minute. Like, just a second. So I will just mention the possible interview questions here. Possible interview questions here, and then one by one we will answer them all. Possible interview questions. Okay, first is how to create schema in PySpark. How to create schema in PySpark. What are the other ways of creating it? What are the other ways of creating it? What is struct field and struct type in schema? What is struct field and struct type in schema? And then what if I have header in my data? What if I have header in my data? Okay. So for schema, how to get schema in PySpark, there are two ways. Okay, just tell you this. First, by using struct type struct field method or by using the DDL option. ठीक है, DDL option मतलब हम क्रिएट करते वक्त ही बना डालते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज बाय यूजिंग दी स्कीमा को कैसे क्रिएट करते हैं. पहले क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ मैं. फर्स्ट वे इज बाय यूजिंग दी स्ट्रक्ट टाइप and struct field method, and then second is by using the DDL option. ठीक है, इससे कैसे करते हैं. पहले मुझे इन चीज़ों को इम्पोर्ट, दोनों को इम्पोर्ट करना पड़ेगा. कैसे? फ्रॉम PySpark .sql .types .sql .types import struct type and struct field. Import struct type, and struct field from PySpark.sql.types. पहले इम्पोर्ट करना होता है. तो पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ. देखेंगे ना, तो एग्जाम्पल में मैं टेबल बना रही हूँ एक. ठीक है, टेबल है मेरी इस तरीके की, इन विच आई हैव कॉलम ऑफ MID column, then there is another column of name, then there is another column of age 1 Manish 26, and then Vikas, and then age is 30, and then third is Preetham, and then age is 22. Struct type, it defines our structure of data frame. Struct type define our structure of data frame. Struct field, it is a list of struct type, is basically a list of struct field. Struct type और struct field, पहले तो इन्हें import किससे करते हैं? From PySpark.sql .type से हम इन्हें import करते हैं from PySpark.sql. ठीक है,
जैसे मैंने लिखा स्ट्रक्ट टाइप is the list of struct field. It defines the structure of our data frame. It defines the structure of data frame. Struct field में हम पूरा जैसे कि बस ये सब लिखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी तो आपका समझ आ जाएगा। जैसे आईडी कॉलम उसकी इंटीजर टाइप है, ठीक है, और उसमें नल वैल्यूज हम पास कर सकते हैं, नहीं तो उसको ट्रू और फॉल्स करना है, 3 तरीके से। वैसे वैसे स्ट्रक्ट फील्ड के बारे में भी आपको पता चल जाएगा जब मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगी ना। स्ट्रक्ट टाइप देख लीजिए, लिस्ट ऑफ स्ट्रक्ट फील्ड है, ठीक है। तो struct type and struct field basically both are classes which are defined in Spark and we use them to create our schema। है क्या ये? जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था ना, how to get schema in PySpark by using 2 ways है, तो radial operation से, with struct type and struct field से। what are the other ways of creating it? ठीक है, struct field और struct type से कर सकते हैं ना, PySpark.sql टाइप से इंपोर्ट करना है इनको और उसके बाद क्रिएट करना है। व्हाट इज स्ट्रक्ट फील्ड एंड स्ट्रक्ट टाइप इन पाई स्कीमा? स्ट्रक्ट फील्ड एंड स्ट्रक्ट टाइप बोथ आर classes in PySpark which are defined in Spark. Use them to create schema. Struct type is a list of struct fields, and in the struct field basically we define our column explicitly. We define the column explicitly. ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे, we define the column explicitly. We define the column explicitly by mentioning its data time or whether null values are allowed in it or not। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, struct type and struct field are basically classes which are defined in Spark and we use them to create a schema। बस इतना आप याद रखो कि struct type and struct field, struct type and struct field are classes in Spark, classes which are defined in Spark which are defined in Spark, and then we use them to create schemas. Then to create use them to create schemas। स्ट्रक्ट फील्ड में ही हम कॉलम की डेटा टाइप्स या फिर उसमें नल वैल्यूज आए या नहीं ये सब डिफाइन करते हैं। यही मैंने आपको बताया था, मैं आपको डिफाइन करके दिखा देती हूँ स्कीमा एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आई डिफाइन दिस माय स्कीमा इक्वल्स टू स्ट्रक्ट टाइप। सबसे पहले मैंने लिखा था ना, स्ट्रक्ट टाइप इज द लिस्ट ऑफ स्ट्रक्ट फील्ड। स्ट्रक्ट टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम टपल बनाएंगे, इसमें लिस्ट पास करेंगे जिसमें बहुत सारी स्ट्रक्ट फील्ड होंगी। क्या पास करेंगे? लिस्ट पास करेंगे, जैसे मेरी बहुत सारी स्ट्रक्ट फील्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली स्ट्रक्ट फील्ड ये बनाई, स्ट्रक्ट फील्ड, ठीक है। इसमें भी भले एक टपल पास करेंगे, जैसे इसमें मैंने कॉलम लिखा आईडी कॉलम, उसमें डेटा टाइप कौन सी लिखी? इंटीजर टाइप चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप है तो इंटीजर टाइप, ठीक है। एंड देन ट्रू मीन्स लाइक नल वैल्यूज आर अलाउड और नॉट, उसके लिए कॉमा। अब ये एक और चीज़ बतानी थी, जब हम अगर नो मैंने ऐसे इंटीजर टाइप वगैरह लिखा है तो इसको भी इम्पोर्ट करना पड़ता है हमें यहाँ पे। जैसे PySpark.sql.types है ना, इसमें हमने ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट की थी, तो इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, इन सबको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक इंटीजर टाइप
इंटीजर टाइप और स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, उसके बाद हम लिखना है यहाँ पे कॉमा स्ट्रक्ट फील्ड, यहाँ पे हमने लिखा है नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप लिखा, स्ट्रिंग टाइप लिखा, देन यहाँ पे हमने लिखा है ट्रू। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्ट फील्ड, उसके बाद ये है मेंशन देयर इज एज, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर टाइप, एंड देन यहाँ पे भी है मेंशन ट्रू। Okay, so this is how we can define a schema। तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बता दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ दो बताया था ना, एक वे तो ये स्ट्रक्ट टाइप स्ट्रक्ट फील्ड से, और एक है दूसरा डीडीएल से। अब डीडीएल से कैसे करते हैं ये भी बता देती हूँ एक बारी। डीडीएल से हम करते हैं, डीडीएल का भी दिखा देते हैं एग्जाम्पल। तो डीडीएल माई स्कीमा, इससे करते हैं यूजिंग आईडी इंटीजर, यहाँ पे मैंने लिखा, एंड देन यहाँ पे कॉमा करके मैं लिख दिया नेम स्ट्रिंग, एंड देन यहाँ से फिर मैंने कॉमा करके लिख दिया एज इंटीजर। ओके, सो बाय दिस वी कैन डिफाइन दिस। ओके, सो ये होगा डीडीएल वाला भी। अब इस स्कीमा को, जैसे हमने एक स्कीमा एक क्रिएट किया, अब हमें इसको अगर मेरे स्पार्क डॉट रीड में यूज करना हो तो मैं कैसे यूज करूंगी, ठीक है। सो उसको मैं इस तरीके से यूज करूंगी कि जैसे कि मान लो मैंने इसे डिफाइन किया है फ्लाइट अंडरस्कोर डीएफ, ठीक है। स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट CSV बैकवर्ड स्लैश डॉट ऑप्शन, ठीक है। हेडर फॉल्स बैकवर्ड स्लैश डॉट ऑप्शन इनपुट स्कीमा फॉल्स कर देना, तो उसमें मैं स्कीमा पास करूंगी, ठीक है। फॉर्मेट ऑप्शन एंड देन तो डॉट स्कीमा। अब जो मैंने यहाँ पे स्कीमा डिफाइन किया था मैं उसको इम्पोर्ट ले रही हूँ यहाँ पे। पहले मतलब मुझे स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसे स्पार्क डॉट रीड वाले में यूज कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद डॉट ऑप्शन, मोड भी मैंने स्पेसिफाई किया है, मोड इज फेल फास्ट, यहाँ पे आई मेंशन डॉट लोड, यहाँ पे मैंने पाथ मेंशन किया, ओके दैट्स इट। is used to check whether files are present. Okay, so that is all for today, guys. Now we'll meet in another video, another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.